से हो रहा है यार, उसको बंद कर दो। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. We'll start with the whole thing. Billion years since the Big Bang into a single calendar Earth year. Every month is a little more than a billion years. Every day, a little less than 40 million. A single hour is almost 2 billion years. That first day of the cosmic year began with the Big Bang, almost 14 billion years ago. Nothing really happened in our neck of the universe until about 3 billion years later, March 15th, when our Milky Way galaxy began to form. 3 billion years after that, our star, the Sun, was born. It was August 31st on the cosmic calendar. Jupiter and the other planets, including our own, would soon follow. The atmosphere on Earth was a toxic environment for our kind of life. Then, September 21st on the cosmic calendar, tiny creatures that could shrug off the methane and eat carbon dioxide and sunlight for breakfast found a way to make a living in the ocean. By gobbling up the carbon dioxide and giving off oxygen, they turned the sky blue. And then, the oxygenation of the atmosphere created the ozone layer. For the first time, life was free to leave the oceans for the land. Now, life could grow larger and venture forth into new territories. Sometime on December 26th, about 200 million years ago, the first mammals evolved. They brought a new feature to life on Earth, the neocortex. And then, late on New Year's Eve, a mutation occurred in the DNA of just one of our ancestors. One base pair of a single gene programmed the neocortex to grow larger still. Maybe it was a random zap from a cosmic ray, or a simple error in transmission from one cell to another. Whatever it was, it led to a change in our species that would ultimately affect every other species of life on Earth. By the last second of the cosmic year, there was no place on Earth that we had left untouched. All of it comes down to nothing more than a single rung on our tiny DNA ladder to the stars. Very good morning, everyone. This was a short video, and मेरा जो पर्पस है आप लोगों को यहाँ बुलाने का, वीकेंड संडे, सो इफ अगर हम लोग इस संडे को या किसी भी दिन को यूज कर सकें, कुछ पढ़ सकें, कुछ नया ज्ञान इकट्ठा कर सकें, तो दैट इज डेफिनेटली गुड. एंड आप में से भी जितने भी लोग इंटरेस्टेड जो वीडियो देखा, देयर इज वन थिंग वेरी आयरॉनिकल कि हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोग की शुरुआत एक डीएनए के म्यूटेशन से हुई. डीएनए आप में से ज्यादा लोग को मालूम होगा, हमारी बॉडी में डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट होता है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में. एंड जब भी कोई चेंजेस होते हैं, चिंपैंजी से ह्यूमन बींग्स बने या कोई भी चेंज हुआ, ऑब्वियसली वो इतना एक ऐसा नहीं होता कि एक जनरेशन में हो गया, लेकिन जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए डबल बनता है, तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, कहीं म्यूटेशन हो जाता है. म्यूटेशन इज द वर्ड विच वी यूज कि जब डुप्लीकेट हो रहा है तो चेंजेस आए. एंड सेम म्यूटेशन इज समथिंग जो हम लोग का कोरोना डिसीज है, उसमें भी म्यूटेशन हुआ. दैट कोरोना डिसीज वाज नॉट फॉर ह्यूमंस. ह्यूमंस को उससे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कहीं म्यूटेशन हुआ, उसी से कोरोना डिसीज स्टार्ट हो गया. सो दिस ऑल इज अ स्ट्रेंज, लाइफ इज अ सर्कल. फाइनली ह्यूमन बीइंग्स की शुरुआत जिससे हुई,
एंड आज हम लोग काफी हद तक जिस समस्या से गुजर रहे हैं वो दोनों चीजें रिलेटेड है. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे. आवर पार्ट ऑफ डिस्कशन इज वेरी सिंपल. वील टेक अप दुनिया की शुरुआत, द स्टार्टिंग ऑफ अर्थ, एंड आई ट्राई टू कवर फ्यू थिंग्स इन माय लास्ट सेशन. व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि उसमें से काफी सारी एरियाज अनटच्ड रह गई या बहुत थोड़ा सा ही रेफर कर पाए हम लोग. आप में से काफी सारे लोगों को मैंने सोचा था कि हम शायद जो लिंक्स दिए थे पढ़ेंगे लोग, उसको करेंगे, वो आप में से काफी लोग टाइम नहीं निकाल पाए. So instead of venturing forward, instead of going to the next level, what I'll do is कि I'll quickly केवल आधे घंटे का ही टाइम लूंगा आपका. I'll quickly try to summarize. पिछली बार हम लोगों ने जो सवाल उठाए थे उनमें से कुछ का जवाब हम लोग ढूंढ पाए थे, कुछ का जवाब नहीं ढूंढ पाए थे. तो आई विल ट्राई कि जिनका जवाब नहीं ढूंढा है वो जवाब आपके सामने फिर से कोशिश कर सके. सी आपको अभी जो बेसिक सवाल है दो कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी है, हाउ बिग इज आवर अर्थ, हाउ बिग इज द एंटायर कॉस्मोस जहां पे हम रहते हैं. ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब से मानवता बनी है तब से हमेशा ही ये सवाल आता आया है. एंड आई हैव इंक्लूडेड स्लाइड्स जिससे आपको दिखाएंगे हर दूसरे साल जो नोबेल प्राइज मिले हैं उसमें काफी हद तक इससे रिलेटेड रहे हैं. फिजिक्स में, कुछ हद तक केमिस्ट्री में भी. So this is a reason, and these things are important for the entire development. हम लोग अगर कहाँ से आए, क्या आए, कैसे बने, अगर इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे तो ही हमें बहुत सारी और चीजें इससे लिंक है जिनका मिल पाएगा. I showed you first thing कि हम लोग टाइम के हिसाब से कहाँ पे हैं. टाइम के हिसाब से हमारी टोटल जो डेवलपमेंट है वो लास्ट 1 सेकंड 2 सेकंड का है. अगर हम पूरे टाइम को, जो बिग बैंग है, उसको हम 1 साल में लेते आए. ये केवल एक एग्जांपल है. इस एग्जांपल का मतलब एक सोबरिंग इफेक्ट का है कि अभी हम लोग we are at negligible spot at the entire universe. एंड स्टिल हम लोग ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है, इतना सोच लिया है कि आज हम लोग इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं. दैट शोज कि इस आखिरी टाइम में बहुत काम हुआ है. यूनिवर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो स्पेस कितना बड़ा है, दैट इज समथिंग व्हिच वी एट टाइम्स वी आर नॉट एबल टू फैथम. हम समझ नहीं पाते हैं स्पेस कितना बड़ा है. एंड स्पेस बड़ा होने में दो फैक्टर्स हैं. चीजें कितनी दूर है. This is one of the important criteria which we fail to understand. Last time I gave you an example कि अगर हमारा जो एटम है वो एटम बहुत ही सिंपल एक बॉल की तरह है, तो उस एटम का जो न्यूक्लियस है अगर वो एक बॉल के बराबर है. न्यूक्लियस आप जानते हैं, हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एलिमेंट. अगर एटम का न्यूक्लियस एक बॉल है तो पूरा जो एटम होगा वो एक शहर के बराबर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे. इफेक्टिवली इसका मतलब स्पेस खाली है. एंड दिस इज नॉट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, दिस इज एट हायर लेवल ऑल्सो. अगर हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ एंड सन की, तो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर अर्थ और सन को पिछली बार आपको दिखाया था बहुत ही छोटे लेवल पे लेते हैं, एक बास्केटबॉल जितना बड़ा सन हो और एक मटर के दाने जितनी अर्थ हो, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी 10 मीटर का होगा. एंड हमारा जो अगला सन होगा वो 3000 किलोमीटर दूर होगा. दैट वुड बी समवेयर नियर दुबई या समवेयर लाइक दैट. सो effectively the entire space is vast. Not only vast, it is vacant. It is कुछ खाली ही पड़ा हुआ है. And I have another, I'll show you, there's another very interesting video which I'll show you to make my point more elaborate. Just a second, I'll just open up that particular. See, I'm referring to number of videos because जो चीज already बनी है और स्पेशलिस्ट लोगों ने बनाई है उसको मैं दोबारा that does not have much of sense. So instead of recreating things, I've tried to bring in. इसमें से कोशिश कर रहा हूँ जितने भी वीडियोस हैं, इट इज नॉट कि कहीं भी रेडली अवेलेबल है. ये नेशनल ज्योग्राफिकल या नासा जो भी रेलेवेंट साइट्स हैं इस पे भी हम लोग ने डिस्कशन करा है कि किस चीज को सही मान सकते हैं. सो यू कैन सी दिस वीडियो व्हिच शोज क्लियरली स्केल, साइज का स्केल.
Now the part of this the purpose of showing this video was not only कि हम लोग human beings are middle sized organisms, हम लोग काफी एक सेट चीजें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उससे छोटी नहीं कर सकते हैं, बड़ी भी नहीं कर सकते हैं, but this also shows कि there is so much to discover. हम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हमारे जो सेंसेस, परसेप्शन, इवन हमारा थॉट, हमारी सोच जिस लेवल पे है उससे ज्यादा दुनिया बहुत बड़ी और बहुत छोटी है. So this is definitely opening up new perceptions. If you think on these lines, then there are many things which you can discover, many things which you can think. But again, that comes to another point, another thing which is very important, and that thing is imagination. अगर ये सारे डिस्कशंस हम लोग जो कर रहे हैं उसमें अगर इमेजिनेशन नहीं है, अगर आप सोच नहीं सकते हैं, अगर आप नई चीजों को महसूस करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो इस पूरे डिस्कशन से इसको समझना भी बहुत मुश्किल है. आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. इन 1913 टाइम मशीन एक बुक आई थी एच.जी. वेल्स की, इनफैक्ट दैट केम बिफोर 1913. इन 1913 एच.जी. वेल्स केम आउट विद अ थ्योरी जहां पे उसने बोला कि एटॉमिक, ही वाज अ फिक्शन राइटर, ही वाज नॉट अ हिस्टोरियन, फिक्शन राइटर मतलब इमेजिनेशन से लिख रहे थे. एंड ही रोट कि ही वाज राइटिंग अबाउट फ्यूचर, डायसोपियन फ्यूचर, जो फ्यूचर उनके हिसाब से हो सकता है, या इमेजिनरी फ्यूचर. एंड ही सेड 1950 में एटॉमिक एक वॉर होगा जो इंग्लैंड एंड जर्मनी में होगा. नाउ ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले है. एंड ही सेड कि वहां पे एटॉमिक बॉम्ब यूज होगा. दिस पर्टिकुलर आइडिया, दिस पर्टिकुलर थिंग, this particular thing he brought in before scientists came with this perception. इसके पहले कि साइंटिस्ट इस बात को समझ पाते, इसको ऑब्वियसली पीपल वर वर्किंग ऑन दैट, बट माय पॉइंट इज कि इसके पहले ही उसने इस चीज को समझा, इस चीज को जाना. एंड दैट इज जस्ट वन साइंस फिक्शन. ऐसी बहुत सारी साइंस फिक्शन थी. मैं बचपन में आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन आइजैक एसिमोव की फाउंडेशन ट्रायोलॉजी, जिसमें उसने साइंस के बारे में. एंड सी, फिक्शन is something which is fiction maybe can become a reality soon. फिक्शन अगर आप बुक्स पढ़िए 1920s 30s 40s की, तो जो उनमें फिक्शन था वो आज की डेट में रियलिटी बन गया है. मोबाइल, इंटरनेट, all these were fictions and something which has become reality now. So this is the part which is something which all of you will perhaps, if you try to understand something, अगर आप कुछ समझना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको इमेजिनेशन रखनी पड़ेगी. अगर आप कुछ इमेजिन नहीं कर सकते हैं, अगर आप कुछ नया सोचने के लिए तैयार ही नहीं है, तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. डेफिनेटली केवल इमेजिन करने से, केवल सपना देखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती. यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट आल्सो. लेकिन इमेजिनेशन प्लेज अ फाउंडेशन रोल. अगर आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं, कुछ नया सोचने की आपके अंदर क्षमताएं हैं, तभी आप कुछ करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं. सो दिस इज वन पार्ट. Now the second part which we had discussed last time and जिसमें काफी चीजें untouched रह गई थी. Last time हम लोगों ने बात करी थी कि Big Bang theory. अब Big Bang, there are two theories. दुनिया कैसे start हुई? There is a static theory जो न्यूटन ने बताई थी कि दुनिया ऐसी हमेशा से थी. If you read Bible या तमाम सारी books, I won't go into particular naming the books, but हर book में जो origin है, कैसे दुनिया की शुरुआत हुई, ये हर book में refer करा गया है. कुछ बुक्स में था कि दुनिया हमेशा से थी, काफी बुक्स में था भगवान ने बनाया, एक शुरुआत हुई और वहां से दुनिया आगे बढ़ी. नाउ न्यूटन ऑलवेज मेंटेन्ड कि वर्ल्ड स्टैटिक था. लेकिन सी, यू कैनॉट डिस्प्रूव, यू कैनॉट क्वेश्चन कि न्यूटन क्यों सोचता था. न्यूटन के टाइम हमारे पास लिमिटेड प्रूफ्स थे, लिमिटेड चीजें थी. ही वाज द वन हु स्टार्टेड साइंस. आज की डेट में स्टैटिक थ्योरी की जगह बिग बैंग थ्योरी, आज का मतलब मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट 40 साल से, बिग बैंग थ्योरी इज एन एक्सेप्टेड थ्योरी. Why it is accepted, that we were discussing last time, कि क्या है ऐसा कि हम बिग बैंग थ्योरी को बोल सकते हैं. Now my point of imagination is कि इतनी बड़ी चीज आप इमेजिन करो कि 13.8 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब 10 करोड़ होता है. वी मस्ट रिमेम्बर, आप लोग इसके पहले भी जो वीडियो देख रहे थे, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है और 1 बिलियन का मतलब 10 करोड़. 13.8 बिलियन साल पहले जो पूरी दुनिया है, that was very small, somewhere फुटबॉल से भी छोटी, एक ऑरेंज के साइज में थी. एंड पीपल परहैप्स उससे भी छोटी थी, एटम के साइज पे थी, फिर कुछ सेकंड बाद उतनी हुई. नाउ this needs lot of imagination. This needs you to completely let go of your perceptions which you have just now. हम अभी जो अपना परसेप्शन है, हमारा दुनिया का जो परसेप्शन है, जो हम बाहर देखते हैं, महसूस करते हैं, पढ़ते हैं,
उसको एकदम चेंज करना पड़ेगा इसको समझने की शुरुआत करने के लिए। हम तभी ये चीज समझने की शुरुआत कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट कि ये केवल कुछ लोगों ने बोल दिया है, हवाई बात है। दे आर प्रूफ्स। जो दो बेसिक प्रूफ हैं जिसको लोगों ने हमेशा से दो बेसिक प्रूफ्स पे बात करी है, वो एक प्रूफ है रेड शिफ्ट एंड दूसरा प्रूफ है कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। दीज आर टू स्टैंडर्ड प्रूफ्स जिसकी हर जगह माना गया है और जिसकी बेसिस पे हम लोग ये कहते हैं बिग बैंग थ्योरी आई, बिग बैंग हुआ। नाउ इसमें से जो पहली चीज थी दैट इज रेड शिफ्ट। व्हाट इज रेड शिफ्ट? आप में से ज्यादातर लोगों ने डॉपलर इफेक्ट एंड रेड शिफ्ट के बारे में पढ़ा होगा। आई हैव अ वेरी जस्ट okay, I have disabled this. I have a very short video जिसमें मैं I'll try to show you कि red shift क्या होता है। That will help you to assess, क्योंकि हम कोई भी चीज आए इसमें मैं दो ही वीडियोस और हैं इसके बाद, उसके बाद मैं आपको जो डिस्कशन का पॉइंट है दैट पॉइंट इज कि हम कोई चीज क्यों माने। तो कोई भी चीज क्यों मानना अगर मैं कह रहा हूं तो डेफिनेटली आप उसका सवाल उठाना आपकी जिम्मेदारी है, आपको सवाल उठाना चाहिए। एंड रेड शिफ्ट क्या होता है? Draw it. So let's say I want to draw a couple of wavelengths here. So let's say that's half a wavelength. That's a full wavelength. That's another half, a full wavelength, another half, full wavelength, and then a half, and then a full wavelength. So let me see if I can draw that. So it would look like full wavelength, full wavelength, full wavelength. This is not easy to do. And then you get another full wavelength. So it would look something like that with the actual waveform. And so that this is just the front of the waveform is just getting to my eye. Then my eye, and then as the waveforms keep going past my eye, my eye will perceive some type of a wavelength or frequency and perceive it to be some type of color, assuming that we're in the visible part of the electromagnet. That very first photon, if you view light as a particle, will reach my eye at the very same time as the very first photon from this guy. So the waveform is going to essentially be stretched. So instead of having, so we're still going to have, see, we're going to have 1, 2, 3, 4 full wavelengths, but they'll now be stretched. So let me see if I can draw 4 full wavelengths. So let me cut this in. See, यहाँ पे the author, you can definitely check on this video. I'll give you the link, and not only this video, आप कहीं से भी red shift के बारे में पढ़ सकते हैं। बड़ी simply अगर बात करें कि दो पर्टिकुलर अगर आपके पास लाइट एमिटिंग सोर्स है जो आगे जा रहा है हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, किसी भी स्पीड पे अगर आगे जा रहा है तो यहाँ पे जो उसकी वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है, एंड वो वेवलेंथ जो बढ़ती है उसके कारण वो हमें half over here. Let me cut each of those in half. So each of these are going to be a full wavelength, and then they're going to have a half wavelength in between. And so the waveform is going to look like this. Let me try my best to draw it. This is the hardest part, drawing this stretched out waveform. And there you go. It's going to look like this. And so when it gets to my eye is going to perceive it as having a longer wavelength, even though from the perspective of each of these objects, if you're traveling with each of them, the frequency and the wavelength of the light emitted is the same. The only difference is this guy's moving away from me, or I'm moving away from it, depending on how you want to view it, while I am stationary, or it is while in this first case, the observer and the source are both stationary. Now, in this situation, what's my eye going to say? Well, my eye will get each of these successive pulses or each of these successive wave trains, and it's going to say, hey, there's a longer wavelength here. So what would that do to the perception of the light? Let's say that this is green light. So if we were stationary with the observer, it would be green light. So let's look at the electromagnetic spectrum. I got this off of Wikipedia. So if I was stationary with the observer, we'd be in the green light part of the spectrum. So at a 500 nanometer wavelength. But if all of a sudden, because the object is moving away from me at this huge velocity, the perceived wavelength becomes wider. So from my perception, it's going to have a wider wavelength. And you can see what's happening. It will look redder. It will move towards the red part of the spectrum. And this phenomenon is called redshift.
This is called. See, this is what is redshift. Now definitely redshift को और डिटेल में समझने के लिए आप के फिजिक्स के टीचर से आप बात कर सकते हैं, या आप इसके वीडियोस देख सकते हैं, या मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए बुक्स पढ़ सकते हैं. पूरी तरीके से डिस्कस करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो पर्पस है यहाँ पे वो ये दिखाना है कि अगर कोई सोर्स आपसे दूर जा रहा है किसी भी स्पीड से, तो वो जो आपको दिखता है वो रेड शिफ्ट होने लगता है. दिस इज समथिंग इक्विवेलेंट कि अगर हम कोई ट्रेन अपनी तरफ आते सुनते हैं, या ट्रेन हमसे दूर जा रही होती है, तो केवल उसकी आवाज से हम इंट्यूटिवली समझ लेते हैं कि वो हमारे पास आ रही है, दूर आ रही जा रही है. फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम, उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है. सेम फिनोमेना हैपेंस विद लाइट, एंड सेम थिंग हैपेंड जिसपे पहला 1920s में, एंड द पर्सन हु ऑब्जर्व दैट ही गॉट नोबेल प्राइज आल्सो, कि वेवलेंथ के थ्रू ये देखा कि जो गैलेक्सी है उसमें काफी सारी जगह हम लोग से दूर जा रही हैं, हमसे दूर हैं. एंड उसके बाद हबल ने लॉ बनाया. हबल लॉ स्टेट्स की जो हमसे इसका जो आपस में वो है कि हमसे जो दूर जा रही है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है. ऑब्वियसली दैट इज 71 किलोमीटर पर सेकेंड पर. देयर इज अ सेपरेट थ्योरी, सेपरेट डिनोमिनेशन फॉर दैट. आप लोग शायद जानते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर. लाइट ईयर का मतलब लाइट एक साल में कितना चली. लाइट ईयर का मतलब टाइम नहीं होता है, लाइट ईयर का मतलब डिस्टेंस होता है. तो सिमिलरली यहाँ पे एक अलग वो है, लेकिन हबल्स लॉ यू कैन चेक अप, हबल के नाम पे वो लॉ पढ़ा. इससे ये क्लियर हुआ कि हमारी जो तमाम सारी गैलेक्सीज हैं वो हमसे दूर जा रही हैं, और जो हमसे जितना दूर है वो उतना ही दूर जा रहा है. जहां से ये कंसेप्ट की शुरुआत हुई कि कहीं ना कहीं वो पास्ट में हमारे पास रहा होगा, पास्ट में ये सारी चीजें पास रही होंगी, एंड फिर कोई बड़ा सा बिग बैंग हुआ जिससे चीजें हमसे दूर जाने लगी. दिस वाज अ कंसेप्ट व्हिच वाज स्टार्टेड, व्हिच वी टुडे कॉल रेड शिफ्ट, एंड दिस कंसेप्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1920s. इसके बाद जो दूसरा जो चीज है वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है. Now this is something जो last time डायरेक्टर सर ने पूछा, I was also not very much aware. मैंने काफी चीजें पढ़ी थी, लेकिन कुछ चीजों का मुझे भी नहीं मालूम था, आज की डेट में भी नहीं है. सी माइक्रोवेव, I'll first go to the next slide. आप ये देखिए, इन सारी चीजों पे नोबेल प्राइजेस मिले हैं. 1978 में पहली बार जिसने देखा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ही गॉट नोबेल प्राइज. एंड आई हैव जस्ट मेंशन्ड फ्यू पर्टिकुलर नोबेल प्राइजेस. नॉट ओनली 1978, 2006 में नोबेल प्राइज जो मिला, दैट वाज अगेन डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से ब्लैक बॉडी के थ्रू उसने देखा, एसेस करा. एंड 2011 में डेफिनेटली एक फिर से नोबेल प्राइज मिला इसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड उससे अटैच लोगों को, जिन्होंने एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स देखा, करा कि नॉट ओनली इट इज मूविंग विद अ फिक्स्ड वेलोसिटी, इट इज एक्सेलरेटिंग आल्सो. एंड सी दैट इज नॉट वन सिंपल लाइन. इससे रिलेटेड जितनी भी मैथमेटिक्स हैं, इसमें ब्लैक बॉडीज का क्या है, ब्लैक एनर्जी का क्या है, डार्क मैटर का क्या रोल है, इन सारी चीजों से रिलेटेड 2011 में. एंड ईयर 2019 में भी नोबेल प्राइज इस चीज से रिलेटेड फिजिक्स में मिला. सो दीज आर डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, एंड दीज आर ऑनगोइंग प्रोसेस. इस पे लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार इस पे रिसर्च चल रही है. सन पे आधे दुनिया के पार्टिकल फिजिक्स ऑलरेडी सन में काम कर रहे हैं. लास्ट टाइम आपको मैंने सन का एक वीडियो दिखाया था. माई पर्पस इज नॉट इन एनी वे टू प्रूव कि आई नो एवरीथिंग. माई पर्पस इज कि इट इज एन ऑनगोइंग रिसर्च. इस पे बहुत सारा काम हो रहा है आपके लिए, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है. अगर हम लोग हर दूसरे तीसरे साल इससे रिलेटेड रिसर्च पे नोबेल प्राइज मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ को बहुत इंपैक्ट कर रहा होगा. एंड इस पे बहुत सारा मैटर है, आगे भी बहुत स्कोप है. डेफिनेटली पिछले कुछ सालों में इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें नहीं मिली हैं. आई हैव आपसे बोला था केवल 2 ही वीडियो है, उसमें से एक वीडियो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का है. इट इज अ वेरी स्मॉल वीडियो. अगेन आई हैव ट्राइड कि वीडियो को थोड़ा छोटा ही कर दें, सो एज नॉट टू वेस्ट योर टाइम. लेकिन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. होपफुली Stars and galaxies notwithstanding, space is pitch black. So pick a dark spot in the sky and point an analog satellite dish at it. You might expect to get nothing, but you don't. You get static. Pick another point and more static. Move your dish yet again, static. Even accounting for all possible types of interference, no matter how you orient your dish, there's this constant underlying microwave band static that's just always there in the darkness of space, emitting the same pattern over and over. इट इज वेरी सिंपल. हम लोग सारे ही लोग, अगर आपके टीवी आप ऑन करो और टीवी में सिग्नल नहीं आ रहा है तो स्टैटिक आता है.
मोबाइल पे या आप अगर एफएम ऑन करिए और एफएम में कोई सिग्नल नहीं हो, एक चैनल से दूसरे चैनल के बीच में स्टैटिक आता है, रेडियो में एक चैनल से बीच के दूसरे चैनल के बीच में स्टैटिक आता है। स्टैटिक का मतलब हिस हिस की आवाज आती है। वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन ये हिस हिस की आवाज क्यों आ रही है? दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। एंड ये हिस हिस की आवाज क्या हर जगह आती है? हर जगह क्यों आती है? हर डायमेंशन से कैसे आ रही है? This is the question which brought this particular entire thing of cosmic background radiation into movement, and this is what the person out here is discussing. एक बहुत छोटी चीज आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, इसमें नीचे जो आपका लिख के आता है, इसको आप यहाँ से सबटाइटल्स को चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको हिंदी में कर दिया है बिकॉज आई थॉट कि मैक्सिमम ऑफ यू विल लाइक हिंदी। यू कैन ऑलवेज चेंज इट बैक टू इंग्लिश, एंड ये जो हिंदी इंग्लिश में चेंज हो रहा है ये ऑटोमेटिक मशीन लर्निंग के थ्रू चेंज हो रहा है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के चेंज हो रहा है, ये दिस शोज की कंप्यूटर की एक रिसर्च की ये चेंज हो रहा है इंग्लिश टू हिंदी। देयर नंबर ऑफ ऑप्शंस, इट इज ऑटोमेटिकली चेंजिंग इट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज यू कैन चूज। तो आप इसको अगर देखना चाहें, आप इसको अगर हिंदी में आपको अटपटा लग रहा है तो आप इंग्लिश में ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज नॉट Now, since we pick up this mysterious static from every direction we look, it would seem to be coming from a source that exists literally everywhere on the sky. Problem is, we don't know of any source anywhere that would emit this observed pattern of microwave emission, so where's it coming from? Aliens. No, it's not aliens, it's never aliens. But what if I told you that the source of the static, which we call the cosmic microwave background, or CMB, was the process that formed the first atoms in the universe almost 13.5 billion years ago? And what if I also told you that the source of the CMB also caused all of space to look orange for millions of years? That's right, the universe used to be orange. To understand how this could be true, we first need to take a brief detour into your toaster. Turn on your toaster. The heating elements glow a pale reddish color. That glow isn't ambient light reflecting off the toaster, it's light being emitted by the toaster itself. If you were to analyze that glow with instruments less limited than human eyes, you'd realize that the toaster isn't just emitting pale red light, it's emitting electromagnetic waves of all wavelengths. Moreover, the intensity at different wavelengths is in very specific proportions that trace out a graph very close to this. That emission pattern, represented by the graph, is called the toaster's thermal spectrum, or really an idealization of a thermal spectrum called a black body spectrum. Now, everything has a temperature, so everything has a thermal spectrum and emits all electromagnetic wavelengths. You, a taco, the sun, everything. In fact, it's called a thermal spectrum because the light is generated by the random motions of particles in the material, and those random motions are themselves a reflection of temperature. Now, if you go really low in temperature, down to 2.7 degrees above absolute zero, the peak shifts way into microwave wavelengths and, lo and behold, exactly matches the CMB. And I mean exactly. The CMB is one of the closest things to a mathematically perfect thermal spectrum that has ever been observed. Problem is, space is pretty much empty. There's nothing really in there to have a temperature, much less the very specific temperature of 2.7 Kelvin, so why does the CMB look like a thermal spectrum at all? To answer that, and to see why space used to be orange, we need to turn the clock back to about 400,000 years after the Big Bang, give or take. During that era, a soup of charged particles with a temperature of several thousand degrees permeated all of space. At this temperature, it's too hot for electrons and protons to even coalesce into atoms, let alone stars, planets, or galaxies. This ionized soup is called a plasma, and just like toasters, people, and tacos, it was emitting a thermal distribution of electromagnetic waves. But because there were no neutral atoms yet, the light the plasma emitted just couldn't travel very far before it would run into an electron and ricochet, like in a pinball game. So if you took the TARDIS back to this era and could somehow keep it from melting, you wouldn't be able to see very far on the view screen. Maybe a few thousand light years, which sounds like a lot, but is basically zero visibility in astronomical terms. So at this moment, it was as if flashbulbs were constantly going off everywhere in space, but the light was being snuffed out by a fog. Now, as this plasma cooled, its temperature eventually dropped below the 3,000 or so degree mark, where neutral atoms could finally form. With no more free electrons to redirect the light, the universe became, for the very first time, transparent. The light that the plasma had emitted then, just before it neutralized, was like one last hurrah, one final flash. Before, during, and after this event, space was expanding. That's what thinned out the plasma and made it cool down in the first place. But as we talked about in a prior episode that you can revisit here,
over the course of a few million years, that orangey thermal spectrum of light was redshifted to longer and longer wavelengths, becoming toaster red and eventually infrared, so that to human eyes, the sky eventually turned dark. If you throw in another 13 plus billion years of space expansion, all that light has redshifted into the microwave band to become what we today perceive as the CMB. And all those atoms from that plasma, well, they manage to clump, become stars, galaxies. That was a very short presentation. You can definitely go and view it yourself. You can check on the details. And that does not explain everything, I'm sure, and it's a difficult process. You cannot simply understand it in one day. Lekin you should get an idea, especially क्यों microwave है. And then definitely the purpose of this entire discussion is कि instead of showing you everything, I'm just trying to point a way towards you. एक रास्ता जिस पे definitely आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे चल के सीख पाएंगे. लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे हमेशा से इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे लगा आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा. एंड इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ जानने के लिए है. दुनिया में लोग इस बारे में हमेशा से जानने की कोशिश करते आए हैं. आज के 2000 साल पहले ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों को हम लोग से ज्यादा मालूम था. अगर आप बात करिए, हम सारे लोग इंजीनियर्स हैं. उस टाइम इंजीनियर का मतलब बहुत ही समाज में कम लोग होंगे जो इंजीनियर लेवल पे अपने आप को इंजीनियर आइडेंटिफाई कर पाएंगे. आई एम श्योर उस टाइम जितने भी लोग इंजीनियर होंगे वो आसमान में देख के मार्स, वीनस, मरकरी ये सब पहचान लेते होंगे. हम लोग एज एन इंजीनियर अगर आपको बाहर बैठाऊं, मैं खुद भी बाहर बैठ जाऊं, बहुत कम चीजें समझ पाते हैं. मैं सप्तऋषि और कई तारे जानता था. आई एम श्योर मेरे बच्चे नहीं जानते हैं. दे नेवर थॉट कि इट इज इंपॉर्टेंट. हम लोग बाहर नहीं बैठते हैं, हम लोग का नॉलेज कम होता जा रहा है, बुकिश नॉलेज बन रहा है. दैट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. I'll very quickly, आधा घंटा हो गया, I'll very quickly come to the last part of my thing कि हम लोग कोई चीज क्यों माने. हम लोग ऐसा क्या है कि कोई सवाल या कोई चीज बताई जा रही है, कोई जानकारी आ रही है, उसको हम कब मान सकते हैं. This is something which I discussed last time also. लेकिन see, effectively what is happening is we are being bombarded with information. हमारे पास information हर तरफ से आ रही है. उसमें से कौन सी information को हम लें और कौन सी information को ना लें. इंफॉर्मेशन को लेने का मतलब होता है कि वो इंफॉर्मेशन ज्ञान बन जाती है. आप कोई भी जानकारी आपके पास आई, वो जानकारी जब आप मान लेते हैं, एसेस कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो फिर आपके ज्ञान की श्रेणी में आ जाती है. हर जानकारी, हर इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं आती है, ज्ञान नहीं बन सकती है. लेकिन दे आर टू पर्टिकुलर थिंग्स. पहली चीज, आप कैसे ये जाने कि कोई इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, उसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये पहला सवाल है. दूसरा सवाल ये है कि आपको मैक्सिमम तरीका ढूंढना चाहिए अपना ज्ञान बढ़ाने का. अगर आप केवल सवाल पूछते रहेंगे, रात दिन केवल सवाल पूछेंगे, उनके जवाब नहीं ढूंढेंगे, जवाब नहीं जानना चाहेंगे, तो इट विल बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज. So it is not only asking questions, it is not only about raising questions, it is about investing time to understand those answers, think on these answers also. तो इन दोनों चीजों का एसिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये कोई नई चीज नहीं है. बहुत पहले से 2000 आज के 2100 साल पहले प्लेटो ने, who was a Greek philosopher, I told last time कि फिलोसफी साइंस के प्रेसिडेंस है. पहले फिलोसफी थी. जो लोग बैठ के ये सवाल सोचते थे कि जो हम देख रहे हैं, अगर हम एक ये देख रहे हैं तो ये किस चीज से बना है और कितने डेप्थ तक गया है, कितने डेप्थ पे एक एटम होगा, परमाणु होगा जो सेम होगा जिससे ये बना है. तो ये सवाल नए नहीं है, ये सवाल बहुत पुराने हैं. मानवता हमेशा सोचती आई है एंड इन सवालों के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ पाए हैं. प्लेटो वाज वन पर्सन हु रोट बुक्स ऑन दैट, on epistemology, where he realized and he questioned कि हम कैसे कोई चीज को माने, and he gave logic. This is a very standard way. In fact, शायद आप में से कई लोगों ने जो आप तैयारी करते हैं हायर कोर्सेज की, इनको करा भी हो कि हम किसी नॉलेज को, what is sufficient for knowledge, what is sufficient for accepting an information as knowledge, that is not part of our discussion. ये लेकिन यहाँ पे मैंने करा है. इससे रिलेटेड मैंने बुक भी डाली हुई है वेबसाइट पे, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, या बहुत सारे और चीजें हैं. साइंटिफिकली आज की डेट में, आई एम कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ माय स्लाइड, जस्ट 2-3 more minutes. What we say, we talk of claim tester. क्लेम टेस्टर का मतलब होता है कोई क्लेम करा, किसी ने कोई चीज बताई, कोई जानकारी आपको देने की कोशिश करी, कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी, आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे माने. It is not only out here, it is not only in class, it is your real life also. लाइफ में कोई चीज आपको बता रहे हैं, आप फेसबुक से देख रहे हैं, इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कहीं से इंफॉर्मेशन आ रही है, आप उसको कैसे माने.
See, people like Taleb, Nasib and Taleb, who is one of the most important thinkers of present time. I adore him. मैंने उसकी बहुत सारी books पढ़ी है. He says कि maximum of news which we hear is not news. It is just noise. नॉइज है, उसका रियल रेलेवेंस नहीं होता. अगर आप रोज शेयर एग्जांपल, अगर आप रोज शेयर मार्केट को देख रहे हैं, किसी दिन शेयर नीचे जाएगा, किसी दिन ऊपर जाएगा, महीने के एंड में एक आएगा कि शेयर 10% या 2% बढ़ा, उस बीच में 15 दिन नीचे गया होगा, 15 दिन ऊपर आया होगा, आप अननेसेसरी 15 दिन दुखी होंगे, 15 दिन खुश होंगे, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा, क्योंकि आप तो एंड पे जा रहे हैं. अनलेस एंड अनटिल यू आर ट्रेडर. अगर आप ट्रेडर हैं, आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. इसी तरह हमारी लाइफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है विच इज नॉइज, विच इज अननेसेसरी इंफॉर्मेशन. यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. लेकिन ऑन द रिवर्स वे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है विच इज वेरी रेलेवेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप उसको एसिमुलेट ना करें, उसको समझे ना और उस चीज पे आगे ना बढ़े, तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे. तो you must have a set of testers. You must yourself have an algorithm. आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिससे आप खुद को ये बता सके कि हम किसी चीज को कब सही माने, या उसको सही मानने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. तो जो नॉर्मली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं वो 4 क्लेम टेस्टर होते हैं. पहला होता है इंट्यूशन. कोई चीज देखने से क्या आपको सही लग रही है. इंट्यूशन इज कि आपका मन क्या कह रहा है. अब हमारा मन जो कहता है वो हवाई बात नहीं कहता है. हमारा मन जो है वो हमारा जो ओवरऑल नॉलेज आज की डेट तक एक्यूमुलेटेड है उस बेसिस पे कहता है. लेकिन यू मस्ट रियलाइज कि ये जो क्लेम टेस्टर है ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है. आपके पास कितना ज्ञान संग्रहित है. मेरा जो मन कहेगा और आपका जो मन कहेगा, दोनों में डिफरेंस होगा. मैंने, हो सकता है आपने उससे रिलेटेड बुक पढ़ी हो, मैंने ना पढ़ी हो, आपने उससे रिलेटेड क्लास अटेंड करी हो, मैंने ना करी हो, तो आपका मन उस चीजों को रिलेटेडली बता रहा है, मुझे आइडिया ही नहीं है, मैं गलत बता रहा हूँ. So this claim tester has a limited role, but it is a starting claim tester. आइसोलेशन में नहीं, लेकिन बाकियों के साथ मिलके आपका इंट्यूशन, पहली नजर में क्या बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहली नजर में जो कुछ होता है सबकॉन्शियसली आप कैलकुलेट करके कर रहे हैं. दूसरा, अथॉरिटी. हम लोग कॉलेज में हर टीचर को अथॉरिटी मानते हैं. अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपको मैंने जो सबसे पहला वीडियो दिखाया वो नील दी ग्रासे का है, हु इज एन अथॉरिटी. उसके आप वीडियोस देखिए यूनिवर्स के. ही हैज बीन अवार्डेड नंबर ऑफ प्राइजेस. मैंने आपको कई चीजें दिखाई, कई बुक्स मैंने रेफर करी है. इफ वी टॉक ऑफ दीज बुक्स, इसको नोबेल प्राइज मिला इस पर्टिकुलर चीज में, फिजिक्स में. तो ही इज एन अथॉरिटी. आई कैन नॉट से कि ये जो लिखा है, अब ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल कि जब लिखा था उसके बाद आज की डेट में चेंज हो गया हो, लेकिन वो उस टाइम के लिए रेलेवेंट था. चेंज हमें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसको हम अथॉरिटी मान सकते हैं. हर चीज के लिए हम खुद टीचर नहीं बन पाएंगे, हमें कुछ टीचर्स का व्यू लेना पड़ेगा. टीचर्स का मतलब टीचर, बुक्स, पर्टिकुलर. यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर आप वेबसाइट्स को रेफर कर रहे हैं, नासा की वेबसाइट हो गई कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल ज्योग्राफिकल की हो गई. अगर आप न्यूज को रेफर कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर्स की न्यूज रेलेवेंट होती है. न्यूज़पेपर का मतलब केवल हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं होता है. टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, कोई भी अच्छा स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर अगर न्यूज दे रहा है तो वो रेलेवेंट है. यू हैव टू बी अगेन अंडरस्टैंड. जो थर्ड चीज है, लॉजिक. न्यूज़पेपर में जो न्यूज आई है वो क्या आई है, वो न्यूज आई है या किसी का पर्सनल थॉट आया है, एडिटोरियल का थॉट है. एडिटोरियल का अगर थॉट है तो उस आदमी का थॉट है, फिर वो अथॉरिटी लेवल पे आ जाता है. तो थर्ड पार्ट ऑफ द क्लेम टेस्टर इज लॉजिक. आपको कोई भी चीज आ रही है, आप लॉजिकली उसको एनालाइज करिए. लॉजिक इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं. आप में से ज्यादातर लोग जो इंजीनियर्स या सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को जानते हैं. लॉजिक को धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा, लॉजिकल चीजें बनानी पड़ती हैं. एंड फोर्थ पार्ट ऑफ एनी क्लेम टेस्टर इज एविडेंस. फाइनली हमें क्या मालूम चला, एविडेंस क्या है. फोटोग्राफ क्या अर्थ की आ गई दुनिया के बाहर से, जहां पे वो गोल दिख रही है, ब्लू प्लेनेट दिख रही है. अगर एविडेंस ही सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अगर कोई चीज सामने ही दिख रही है एंड क्लियर एविडेंस है, तो उसको फैक्ट माना जाता है. लेकिन अगेन, in world everything changes. It changes because you get more information, you gain more knowledge. जैसे जैसे टाइम बीतता है आपको और ज्ञान बढ़ता है. आपका ज्ञान जब बढ़ता है तो पुरानी चीजों को आप छोड़ देते हैं, नई चीजों पे आते हैं. लेकिन वो पुरानी चीजें जब तक थी तब तक झूठ नहीं थी, बस आपको नया नॉलेज मिला तो आप नई चीजों पे आ गए. So that is my part of this whole thing, the entire discussion today. Thanks for attending it. ये सारी ही चीजें मैंने वेबसाइट पे डाली हुई हैं. आपको मैं अपना पेज दिखा देता हूं जहां पे आप एक्सेस कर सकते हैं. ऐसा कोई जादुई पेज नहीं है, आपको इसमें से काफी सारी चीजें बहुत सारी जगह मिल जाएंगी. दिस इज जस्ट वन पर्टिकुलर जगह जहां पे मैंने कोशिश करी है इकट्ठा एक साथ करने की. यू मे और मे नॉट check it, that is definitely up to you. This is particular site you can अगर आप
just a second, I opened up the wrong page, it appears. आप अगर पर्टिकुलर हम लोग इस साइट पे जाएं एंड आप यहाँ पर टच करें VIT कानपुर की साइट पे जाके बिग डैश हिस्ट्री टाइप कर दें, तो यू विल डायरेक्टली लैंड अप एट दिस पेज, जहाँ पे ये लेक्चर, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं जो आपको दिखाए हैं वो सारे दिए हुए हैं। अगर आप ऐसे नहीं आ सकते हैं तो आप यहाँ पे साइट पे स्टूडेंट डेवलपमेंट में प्रोग्राम्स दिया हुआ है, स्टूडेंट डेवलपमेंट में सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, आप उससे भी आ सकते हैं, स्टूडेंट डेवलपमेंट में सर्टिफिकेशन कोर्सेज। अदरवाइज आप vitk.vision.org हम लोग की साइट है, उसके आगे बिग डैश हिस्ट्री लिख देंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। जितने भी वीडियोस आपको मैंने यहाँ दिखाए हैं वो सारे वीडियोस यहाँ पे मैंने एम्बेड कर रखे हैं। कुछ और बुक्स भी यहाँ पे हैं, आप चाहें तो डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। माय पॉइंट अगेन ऑफ दिस इंटायर डिस्कशन वाज कि हम लोग किसी चीज के बारे में सोचें। आई एम इन नो वे क्लेमिंग कि मुझे इस बारे में बहुत कुछ मालूम है, मुझे तो बस शुरुआत में मालूम है। आप में से कई लोगों से अगर आइडिया लगेगा, मालूम चलेगा तो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर मी। सो we'll meet again next week, next Friday evening with some continuation in this part. This is just a part of discussion. हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ और चीजें हों जो हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर उसके बीच में आपके इससे रिलेटेड किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम, वरना आप खुद आंसर ढूंढ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई चीज आए तो यू कैन यहाँ पे नीचे यू कैन पोस्ट अ कमेंट आल्सो इफ यू नीड, दैट्स नॉट मैंडेटरी इन एनी वे। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीक में वील एनालाइज की फाइनली बिग बैंग, अभी तक हम लोग केवल बात कर रहे हैं क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें क्या था और वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दिस विल डिस्कस नेक्स्ट वीक। सो आई अगेन थैंक ईच एंड एवरी ऑफ यू फॉर कमिंग आउट हियर, फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। होपफुली आप टाइम को यूज करें प्रॉपर्ली। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।